Good morning, everyone, and let's give really a very, very warm round of applause to Mr. Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister of Tourism and Culture. He's been very kind. He's had a very busy schedule, but yet he's agreed to come and not only discuss tourism, but also give us the honor of presenting all the award winners for the India Today Tourism Awards ceremony. Mr. Shekhawat, as all of us know, belongs to the great state of Rajasthan, which is a major tourism hub. And as Union Minister, he's been here now close to 9 months, sir. He has championed the cause of making tourism the key driver of GDP, and that's one of the most important things for economic growth. The other thing, last year he launched Chalo India 2024 and Adopt Heritage 2.0. And I think most importantly, he is focusing on the issue of sustainability of tourism, because in terms of the fact that for long-term tourism growth, preserving India's ecology is critical. You can't just use it, and then a lot of states here that are there know about that particular issue, and he's a champion of that. Minister Saab, before we get into a little Q&A, I just thought we'll do a dashboard of Indian tourism so we get a sense of where our successes have been. And the good news is that Indian tourism sector has recovered from the devastating blows of the COVID pandemic. All of us have experienced that for 2 years. Happily, in 2023, international tourist arrivals, and if you combine both foreign nationals and NRIs, touched 18.89 million. And out of these, the foreign nationals themselves is about 9.52 million. These were close to the pre-pandemic figures of 2019. So that's the good news. And domestic tourism, in fact, has overtaken all expectations and has touched 2.5 billion. That's an enormous amount of tourists coming in for us. That's minus Kumbh. Minus Kumbh. Okay, yes, I didn't calculate Kumbh, so we take that. You're absolutely right. It'll probably be, Kumbh was about 100 million? Or, no, 10 million. 10 million. Sir, it was 660 million. Oh, gosh. Okay, so we are now broken all records of that. We take spiritual tourism with that. And if you look at the contribution of tourism as in terms of GDP, it is 5%, again, regaining the percentages that it has. And if you take a look at the overall, it's between 5 to 7%, seen as one of the major job creators. And that's the most important thing. Last year, estimates were about 70 million jobs were created by tourism. So that's one of the biggest reasons why we should be promoting tourism, because we know unemployment has always been an issue in a country that is developing. Foreign exchange earnings, that's the other third big reason, is $28 billion. And that's quite, again, picking up dramatically in the last year or so, almost doubling, post-COVID. So that's all the good news that's there. Let's also be clear, and I'm presenting the other side of it, is that India is certainly not batting or bowling up to its potential, if we use the IPL analogy that's there. Just one example, if you take a look at Thailand, they get 3 times more foreign tourists than we do. And if you take a look at Europe, they're doing about, Spain, countries like Spain have about 80 million, and we are close to only, So there is a lot of difference that's happening when we look at the overall numbers, which we have a lot of potential. So, and if you look at the share India has in terms of the total foreign tourism arrivals and world tourism arrivals, it's around between 1.45% as compared to the rest of the world. And earnings, which is another good indicator, people talk of it being between 1.8 to 2%. So clearly, there is a tremendous amount of potential that we have. Given the fact that I've mentioned earlier, smaller countries like Thailand do far, far better in terms of tourist arrivals. So, Mr. Minister, what are the challenges Indian tourism faces, and what is the kind of steps your government has taken to make India a global tourism hub? धन्यवाद राज जी। आपने विस्तार से भारत के टूरिज्म सेक्टर की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा की। मैं इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर न केवल चर्चा और आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, अपितु टूरिज्म के सर्वे को प्रकाशित करते हुए आज जिन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उन सबको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम आयोजित किया है।
ओवरऑल टूरिज्म के स्पेक्ट्रम को अगर हम दुनिया के देखें तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल के दृष्टिकोण से भारत हमको कहीं पीयर कॉम्पिटिटर्स में कहीं नीचे दिखाई देता है। जैसा आपने चर्चा की थाईलैंड की, आपने बात की स्पेन की, आपने बात की फ्रांस की, लेकिन ये सारे देश जितने भी हैं इनमें इंटरनेशनल टूरिस्ट के अलावा डोमेस्टिक टूरिज्म का कहीं कोई स्कोप नहीं है। That's true. भारत की स्थिति परिस्थिति दूसरी है और भारत की तुलना अगर वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पे अगर किसी एक देश से की जा सकती है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी हो गई, 150 से ज़्यादा हो गई, न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क राजस्थान में खड़ा, देश में पूरे में खड़ा होने लगा। पूरे देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़े और उसके आगे लगभग 500 ट्रेन अगले 5 साल में चालू हो जाए, उसके लिए काम चल रहा है। इनलैंड वाटरवेज, उस पर जो भारत में जहाँ एक भी इस तरह का वाटरवे आइडेंटिफाइड नहीं था, आज 100 से ज़्यादा वाटरवेज आइडेंटिफाई करके उन पर काम हो गया, उस पर वाटरवेज की एक नई दुनिया, पूरा इकोसिस्टम भारत में खड़ा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ टूरिज्म, राइट। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ, इसने निश्चित रूप से कोविड के बाद के कालखंड में भारत को टूरिज्म के को वापस बाउंस बैक करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन पूरे विश्व भर में जो ये रिवेंज टूरिज्म इसको नाम दिया गया है कि कोविड में 2 साल तक सब लोग घर में कैद रहे थे, उसके बाद जो घर से बाहर निकले, दुनिया के सब देशों ने टूरिज्म में एक स्पाइक, एक नई हाइट जो है इस समय में देखी। हम भी प्री कोविड पोजीशंस पर लगभग पहुंच गए इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर दुनिया में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और इंटरनेशनल दोनों को जोड़ करके अगर कहीं कोई इंडेक्स बनाई जाती है, और मैं तो इंडिया टुडे को कहूँगा कि उस दृष्टिकोण से भी निश्चित रूप से उस पैरामीटर पर सर्वे करना चाहिए था, तो मैं ये मानता हूँ कि भारत दुनिया में सबसे ऊपर की पायदान पर खड़ा होगा। पिछले 1 साल में भारत में जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स था उसका नंबर 250 करोड़ था। बिल्कुल। और वो मैं तब कह रहा हूँ जब कुंभ के पहले के वर्ष के, अभी कुंभ के साल के आंकड़े आएंगे तो वो सब मिथक टूट जाएंगे। और जब टूरिस्ट आता है, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो फॉरेन करेंसी लेकर के आता है और यहाँ भारत से हमारे संस्कृति के दर्शन करके वापस भारत की संस्कृति को देख करके, समझ करके, उसको अनुभव करके विदेश में जा करके उसके बारे में चर्चा करता होगा। लेकिन भारत जैसे विशाल देश जो कॉन्टिनेंट साइज़ की कंट्री है, उसमें भारत के स्थानीय लोग, डोमेस्टिक लोग भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, देखो अपना देश, उसके तहत भारत के लोगों ने जिस तरह से निकलना शुरू किया, एक बड़ी उछाल भारत के टूरिज्म सेक्टर में, डोमेस्टिक टूरिज्म के सेक्टर में देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से सामान्य मानवीय की मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती को समाप्त करने के लिए काम किया और विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा, उसके चलते हुए सभी आर्थिक जगत के विश्लेषण करने वाले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, कुछ आंकड़ों को लेकर के, नंबर्स को लेकर के कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग में आए। नाउ दैट क्लास हैज़ ए डिस्पेंसेबल इनकम इन देयर पॉकेट एंड दैट इज़ एन एस्पिरेशनल क्लास। राइट। वो पहली बार घर से बाहर निकल रही है और वो घर से बाहर निकल करके सबसे पहले, अब सामान्य थोड़ा सा आप अध्ययन करके देखेंगे, आपको लगेगा, विचार करके देखेंगे, वो सबसे पहले घर से निकल करके तीर्थाटन के लिए जाता है। ही गोज फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म। तब आप देखिएगा कि हमारे स्पिरिचुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो एस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे वो उज्जैन का महाकाल, जिसका पुनरुद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया होगा, केदारनाथ में किया होगा, जो है पुरी में किया होगा, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया होगा, इन सारे डेस्टिनेशंस पर आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उज्जैन के महाकाल में महाकाल बनने से पहले
साल भर में जहां 6-7 लाख लोग आते थे, आज एक सप्ताह की वो संख्या जो है वो 9 लाख के आसपास पहुंच गई। अयोध्या का पिछले 1 साल का डेटा जो है अभी उन्होंने शेयर किया है, वो 13 करोड़ पहुंच गया। ठीक यही स्थिति, रोजाना लगभग 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो हमारे पुरी के मंदिर, हमारे तिरुपति के मंदिर में 70-80 हज़ार के लगभग लोग आ रहे हैं, 70,000 के लोग लगभग वैष्णो देवी में जा रहे हैं। हिंदुस्तान का हर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जो है उस पर एक तेज गति के साथ में बड़ी उछाल स्पिरिचुअल टूरिज्म में आया है। उससे ऊपर के लोग, क्योंकि भारत की आर्थिक संपन्नता बढ़ी, भारत की इकोनॉमी ने जिस तरह से ग्रो किया है, जो हमारा मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास जो है वो फर्दर एलिवेट हुआ और उसने जो है हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस, चाहे वो शिमला होगा, चाहे वो मनाली होगा, चाहे वो कुल्लू होगा या कोई और, हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल करना शुरू किया। वहाँ भी आप देखेंगे कि सब जगह पर उसकी क्षमता से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पहुँचने लगे। मतलब भारत टूरिज़्म के दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जिस तरह से भारत में मिडिल इनकम ग्रुप के पास में आने वाले समय में डिस्पेंसेबल इनकम और बढ़ेगी। राइट। सरकार ने जिस तरह से अभी बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रिलीफ दिया है, That's right. Yes. ये अपने आप में ट्रांसलेट होने वाला है टूरिज्म के लिए। इसलिए आगे आने वाला समय भारत में पर्यटन के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से एक बहुत बहुत सुनहरे भविष्य का जो है संकेत मुझे दिखता है। और इसके साथ साथ में ये जो वर्तमान में परिस्थिति है जिसको देख करके कि दुनिया के टूरिज्म सेक्टर की जिसकी आपने चर्चा की, आपने कुछ देशों की बात की, TTDI जो इंडेक्स है उसमें हम 39 नंबर पर खड़े होंगे, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स को अगर थोड़ा सा ठीक से ट्वीक कर दें तो मुझे लगता है कि इंडिया आसानी से टॉप 10 डेस्टिनेशंस में आ सकता है। और हम सरकार में पर्यटन मंत्रालय में बैठ करके देश भर के सारे राज्यों के पर्यटन विभाग और मंत्रालयों के साथ मिलकर के, राज्यों के साथ मिलकर के देश को टूरिज्म के इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज में पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। Excellent. Now, if you look at the budget, Minister Saab, I think you've decided to develop 50 top tourist destinations and there improve tourism infrastructure, ease of travel, connectivity on this. Can you tell us a little more about how have you chosen these destinations and what is going to be done in the next year for them? पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन और प्रसाद, इन 2 स्कीम्स के माध्यम से, एक हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स को लेकर के और दूसरे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे लेकर के, वहाँ टूरिस्ट एमिनिटीज़ डेवलप हों, जाने वाले पर्यटक का ओवरऑल एक्सपीरियंस एलिवेट हो और नया टूरिज्म प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, इसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। पिछले वर्ष में भी जो भारत सरकार की एक स्कीम है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, जहां 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन राज्य सरकारों को भारत सरकार देती है। हमने माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के इस वर्टिकल में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने इस वर्टिकल में भी टूरिज्म की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसे अकोमोडेट किया और लगभग 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है हम उसमें कर पाए। Yes. Let's give that a very warm round of applause. लेकिन इसके साथ साथ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था, हम अपने एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस के साथ साथ में उन डेस्टिनेशंस के पे जाने वाले टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को एलिवेट करें, उनको वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस बनाएं। ऐसे 50 डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बजट में घोषणा की है। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के चैलेंज बेस, और चैलेंज का मुख्य आधार, पहली चीज़ वहाँ पोटेंशियल हो, दूसरा सरकार का प्रिपेयर्डनेस हो। अल्टीमेटली टूरिज्म बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकार को उसके लिए काम करना है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड थिंग इज़ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस पर आने के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, एमिनिटीज सरकार बना सकती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार खड़ा कर सकती है, टूरिज्म प्रोडक्ट सरकार बना सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हॉस्पिटैलिटी का जो काम है वो वहाँ जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को करना होगा। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन जहाँ होगा उसके बेस पर हम डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा विषय है
वो ये कि पिछले लगभग 20 साल से जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री इस बात की डिमांड कर रही थी कि टूरिज्म में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को Correct. Yes. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के कारण से हॉस्पिटैलिटी के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म बैंकेबल लोन जो है वो मिलता है, और लोन मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर मानते हुए लैंडिंग कर रहे हैं, वहाँ लैंडिंग जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस इनिशिएटिव के बाद में और ये जो डिक्लेरेशन किया उसके बाद में ये जो नए डेस्टिनेशंस डेवलप होंगे ये भारत के टूरिज़्म को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे, और ये जो भारत से निकल करके लोग आज विदेशों में जाने की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि भारत आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ में सबसे बड़ा टूरिज़्म मार्केट भी बन गया है, इसको हम कहीं रोक पाने में उसके चलते हुए कामयाब होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले वर्षों में हमने G20 की प्रेसिडेंसी के बाद में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके कारण से माइस जो है टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़ी है। 60 अलग अलग जगह पे जब G20 मीटिंग के समय में जो फैसिलिटीज़ डेवलप की या फर्दर स्ट्रेंथन की गई थी उनके कारण से आज देश में मीटिंग्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब की जो है संभावनाएं बहुत बढ़ गई और इस वर्टिकल पर देश में काम होने लगा है। इसके साथ साथ में हॉस्पिटल जो है हमारा मेडिकल टूरिज़्म की संभावनाएं और वेलनेस टूरिज़्म की संभावनाएं भी भारत में बहुत तेज़ गति के साथ में बढ़ी है। इस पर फोकस करते हुए आने वाले समय में हम काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट की घोषणा के अनुरूप उस पर काम कर रहे हैं। The other big issue, since you are expanding tourism so much, is manpower, or women power, if you want to make it neutral in terms of that. The kind of jobs that tourism creates, the demand that is there, we saw last year itself, we are close to 70 million, 76 million jobs being created. But there is this expertise shortage, the skill development shortage. What are you all doing, the central government is doing to encourage states and the center also, of course, on its own, to develop the skill levels required so that we provide excellent service apart from facilities? राज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया भर में इस बात को अब स्वीकार किया जाने लगा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, टूरिज़्म सेक्टर, वो खेती के बाद में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। भारत में भी निश्चित रूप से जिस तरह से टूरिज़्म ग्रो कर रहा है और भारत के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि द टूरिज़्म सेक्टर इन आवर कंट्री इज़ गोइंग टू ग्रो मोर देन विद द रेट ऑफ 24% CAGR, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 7-8% की गति से बढ़ रही है, इसलिए हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो है उससे 3 गुना गति के साथ में बढ़ने वाला है। ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे पास हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। भारत सरकार और भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों में लगभग 30 के आसपास ऐसे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के और टूरिज़्म इंडस्ट्री के मैन पावर को ट्रेन करने के लिए काम करते हैं। मुझे जब इस मंत्रिमंडल का काम अपने मंत्रिमंडल में शरीक करके इस मंत्रालय का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और मैं स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग की, तब यह संज्ञान में आया कि इंडस्ट्री के पास में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है और दूसरी तरफ जो हमारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उनमें उस लेवल पर जो है एंथुजियाज्म एडमिशन को लेकर के नहीं है। तो हमने उस गैप को फाइंड आउट करने के लिए इंडस्ट्री को साथ जोड़ करके एक कमेटी बनाई, उसके साथ में बार बार मीटिंग की और फाइनली हमने हिंदुस्तान में काम कर रहे सारे बड़े जो है हॉस्पिटैलिटी ग्रुप्स जो हैं, जाइंट्स जितने भी हैं, उन सब के साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को अलाइन किया। ताज ग्रुप के साथ में, इंडियन होटल्स कंपनी जिसका नाम है, मैरियट के साथ में, रेडिसन के साथ में, लेमन ट्री के साथ में, सारे इंडिया के टॉप ग्रुप्स के साथ में हमने अपने 30 इंस्टीट्यूट्स को बांटा ताकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप लोग बच्चों को ट्रेन कर सकें और सीधा उनको अकोमोडेट कर सकें। ये जो काम हमने प्रारंभ किया इसका परिणाम अगले 2 साल में आने लगेगा और मैं ये मानता हूँ कि इसके चलते हुए आने वाले समय में जो है प्रोफेशनल्स इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसकी कमी की जो चुनौती हमारे सामने खड़ी है, जो आ सकती है, उसका समाधान हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। Excellent. Let's give him a very warm round of applause for that. And
The minister has a flight to catch, so our time is limited. One final question, since we have all the state representatives here. What you would expect from states to cooperate, coordinate, or whatever terms you'd like to use? Because many of these subjects, whether you look at cleanliness, whether you look at land and labor, whether you look at safety concerns, that's one of the big things, particularly for foreign tourists, safety and their own security. What would you advise the states? What do you hope from the states in the coming year, and what other things you would like them to do? I think ultimately all the responsibilities are on the shoulders of the state governments, right from selection of places to keeping them clean and neat. जितनी भी तरह की जो है कम्युनिकेशन और कम्यूटेशन की फैसिलिटीज़ हैं उन सबको इंटीग्रेट करके उनकी सबकी सुविधा बढ़ाना। मोटे तौर पर ये सारे विषय जो हैं वो राज्य सरकारों के पास में है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की, वो सब राज्य सरकारों के पास में। इसके साथ साथ में जो आपने शुरुआत में एक विषय रखा था कि हम सस्टेनेबिलिटी पर काम करें, इस सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी राज्य सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। हालांकि हमने भारत सरकार में आने वाले सब जो जितने भी प्रोडक्ट्स जिन टूरिज़्म प्रोडक्ट्स या टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए जो भी असिस्टेंस भारत सरकार की तरफ से देंगे, हर उस डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट के लिए, हर उस सपोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हमने प्रायोरिटी के साथ में सस्टेनेबिलिटी को भी एक वर्टिकल के रूप में आइडेंटिफाई किया है, ताकि उसको हम एक पैरामीटर मानते हुए कि उसको लेकर के क्या सोच है आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करें। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के जब इस दिशा में काम कर रहे हैं, और राज्य में बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहता हूं क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ में बहुत वर्षों से जुड़ा हूं। लगभग 4 दशक की मेरी यात्रा इस सेक्टर के साथ में जो हो गई है। जितना एंथुजियाज्म टूरिज़्म सेक्टर को देख करके और जैसा कंपटीशन स्टेट्स के बीच में टूरिज़्म सेक्टर को के लेकर के है, वैसा एंथुजियाज्म और कंपटीशन हिंदुस्तान में कभी देखने को नहीं आया। अब हर स्टेट टूरिज़्म के पोटेंशियल को समझ रहा है और ये मानता है, इस बात को स्वीकार करते हुए काम कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी का ड्राइवर टूरिज़्म सेक्टर बन सकता है। अभी चंद्रबाबू नायडू साहब का जो स्टेटमेंट कल था, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने किस तरह से कहा है कि अब कोई इज़्म नहीं बचा है, केवल एक टूरिज़्म है जो वही बचने वाला है। न लेफ्टिज़्म बचेगा, न राइटिज़्म बचेगा, केवल टूरिज़्म हिंदुस्तान में बचेगा। और मैं मानता हूँ कि टूरिज़्म सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो है जिसमें अपार संभावनाओं के द्वार पर भारत खड़ा है। भारत की तरफ देखने का नज़रिया जिस तरह से विश्व का बदल रहा है, जिस गति के साथ में द स्पीड एंड स्केल विद विच इंडिया हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ, पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव भारत की तरफ देखने का बदल रहा है। और उसके चलते हुए भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों की और साथ साथ में भारत से निकले हुए हर विधा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की हर कला संस्कृति, इन सब को जानने, पहचानने, समझने के वाले लोगों की संख्या आने वाले 1 दशक में कई गुना बढ़ने वाली है। इसलिए हम अपार संभावनाओं के द्वार पर खड़े हैं और निश्चित ही मैं राज्य सरकार के सभी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनसे आग्रह से कहूँगा कि आपको और अधिक गंभीरता के साथ में इस सेक्टर पर काम करने की आवश्यकता है। Ladies and gentlemen, you've heard the minister. Let's give him a very, very warm round of applause. Let me just say that seldom do you have a minister who commands the kind of knowledge that he has, the enthusiasm and the passion with which he speaks, and the clarity and lucidity. In these 20 minutes, he summed up the entire tourism sector and what we need to do ahead. A lot of the ministers are here, as well as the heads of the various tourism departments, sir, and we deeply appreciate you and honored that you made time to come here. We now have the most important part, as important as the minister's speech, which is the tourism awards. All of them have been eagerly awaiting this particular announcement. So, Sonal, we give it to you on this. Go ahead. Before we proceed, we would like to express our gratitude to Sir for coming here and out of his busy schedule giving us that time. Raj, I would like to request you to felicitate Mr. Shekhawat, the Union Minister for Tourism and Culture, by handing over a token of appreciation. Sir.
Yeah, please give us a minute as we set the stage Yeah, for the just- award ceremony. Yes. And just to let you know that the Tourism Awards has been going on almost close to about 8 years now, sir. We have 10 categories, and what we try and do is to do a combination of things. We do have an agency that puts out these. Almost 77 applications we got for many of these categories. And then not only do they make an objective thing, we also have an editor's choice where we all sit as a board, and we have our own tourism special and editors that are there that will also make a choice of that, which we call the editor's choice. So there'll be 2 sets of awards, which we will be awarding today, and we'll have the pleasure of the minister doing that. Shall we start, Shall we start? Priyanka? Yeah. Okay, great. And now with great excitement, we will be recognizing and honoring the India Today's Tourism Awards. Can we have a show of hands, everyone? Let's give a warm round of applause. Sir, I would also like to request you to felicitate the award winners, right? Yeah. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Adventure Destination is Rishikesh in Uttarakhand. To receive the award, may I have on stage Mr. Sachin Kurve, Tourism Secretary, Government of Uttarakhand. Everyone, please keep the applause going. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category next one, later. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Adventure Destination is Nameri in Assam. And to receive the award, may I have Mr. Padmapani Bora, Commissioner and Secretary, Tourism Department, Government of Assam. Mr. Bora? The survey winner for Tourism Awards under the category Best Beach Destination is Morjim Beach in Goa. And to receive the award, may I have Mr. Sanjeev Ahuja, Secretary Tourism and Resident Commissioner of Government of Goa in Delhi. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Beach Destination is Blue Flag Beach, Puri in Odisha. And to receive the award, we have Ms. Mansi Limbhal, Managing Director, Odisha Tourism Development Corporation. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Heritage Destination is Amer Fort in Rajasthan. I guess we have all been there. And to receive the award, we have Mr. Ravi Jain, Principal Secretary, Tourism, Rajasthan. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Heritage Destination is Chettinad in Tamil Nadu. And to receive the award, we have Ms. Shilpa Prabhakar Satish, Commissioner of Tourism and Managing Director for Tamil Nadu Tourism Development Corporation. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Mountain Destination is Kumbhalgarh. And to receive the award, we have Mr. Ravi Jain, Principal Secretary Tourism of Rajasthan with us. It's his second award. Everyone, let's have the applause louder. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Mountain Destination is Mechuka in Arunachal Pradesh.
And to receive the award, we have Ms. Adong Myong, Resident Tourism Officer, Arunachal Pradesh, and Ms. Mato Bagra, Deputy Resident Commissioner, Arunachal Bhavan. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Wildlife Destination is Gir National Park and Wildlife Sanctuary in Gujarat. And to receive the award, we have Mr. Kuldeep Singh Jhala, Joint Managing Director for Tourism in Gujarat. The Editor's Choice Winner Award for under the category Best Wildlife Destination is Nagarhole National Park in Karnataka. And to receive the award, we have Mr. Prashant Shankinmat, Managing Director, Jungle Lodges and Resorts. The survey winner for Tourism Awards under the category Most Instagrammable Landscape is Road to Heaven, Dholavira in Gujarat. And again, to receive this award, we would like to invite Mr. Kuldeep Singh Jhala, Joint Managing Director for Tourism Gujarat, back on stage. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Most Instagrammable Landscape is Gulmarg in Jammu and Kashmir. And to receive the award, we have Mr. Satish Sharma, Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Transport, Science and Technology, IT, Youth Services and Sports and Training Departments, Jammu and Kashmir. जय माता दी। थैंक यू वेरी मच माननीय मंत्री जी और सारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करूँगा जम्मू कश्मीर में। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बुलंदियों को छू रहा है और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के मेहनत से वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, आई होप कि हम हिंदुस्तान का ताज हैं और उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और उसमें हमें आशीर्वाद चाहिए मंत्री जी का। ही हैज़ ऑलवेज बीन काइंड और मैं उम्मीद करता हूँ आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडेंस हम पर रहे और हम अपने जो विरोधी मुल्क हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में एक नया वर्टिकल शुरू किया था प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जो कश्मीर में लैवेंडर की खेती होती है उसको टूरिज़्म के साथ कनेक्ट किया। आपको आश्चर्य होगा कि वो जब उसको टूरिज़्म के साथ में कनेक्ट किया तब कितने टूरिस्ट ने पिछले साल उसको विज़िट किया। द नंबर गोज़ टू 2.5 मिलियन। 25 लाख लोग केवल लैवेंडर की खेती को देखने के लिए वहाँ गए। ये जो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात मैंने कही, क्योंकि अब टूरिज़्म जो है, since the perspective to look towards life has changed after COVID, and people are giving preference to experiential tourism over monumental. So we need to develop more experience because all the state representatives are here. So keep it in mind that आने वाले समय में जो भी projects हम करते हैं वो सब that there should be some unique experience over there. और वो experience होगा तो ultimate automatically वो destination जो है वो अपने आप में hit हो जाएगा. And that is how, this is what the experience of Jammu and Kashmir, which I wanted to flag and share with all of you. Thank you. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Spiritual Destination is Ambaji Shaktipeeth in Gujarat. And for third time now, I would like to request Mr. Kuldeep Singh Jhala, Joint Managing Director, Tourism for Gujarat, to come back on stage.
The Editor's Choice for Tourism Awards under the category Best Spiritual Destination goes to Shikharji Teerth in Parasnath Hill in Jharkhand. And to receive the award, may I like to request Mr. Prabhakar Ojha, Chief Administrative Officer of Jharkhand, and Mishma, Treasury Officer at Jharkhand Bhavan, to come on stage to receive the award. The survey winner for Tourism Awards under the category Most Scenic Road Destination is Old Silk Route, Zuluk in Sikkim. And to receive the award, I would like to request Mr. Shring Thendu Bhutia, Minister Tourism and Civil Aviation Department, Government of Sikkim, along with Mr. C.S. Rao, Principal Secretary, Tourism and Civil Aviation Department, Sikkim, to come on stage and receive the award. May I request the ministers to say a few words? Good afternoon. Thank you very much, Team India today, for this award. It's a great moment for our state, Sikkim. विशेष करके मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमारा माननीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी जो हर टाइम हमारा स्टेट को एकदम हृदय में रख के कुछ नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए आगे हम लोग को डायरेक्शंस जब भी मिलते हैं वो एकदम हमको इनकरेज करते रहते हैं। इसलिए विशेष करके हमारा मेन सिक्किम का इंडस्ट्री बोले या फैक्ट्री वाले कुछ भी बोले, हमारा टूरिज़्म ही है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत हमारा जितना भी हमारा स्टेट का लोग सब निर्भर है। इसीलिए हम बहुत इसको ध्यान से टूरिज़्म में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जितना भी हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री से विशेष करके हमारा सम्माननीय जो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसका बहुत सिक्किम के ऊपर बहुत हम लोग का प्यार है और जितना भी स्पेशल केयर के साथ हम लोग का जितना हेल्प मिलता है वो एकदम एक्सटेंड कर रहे हैं। इसीलिए जितना हम लोग के ऊपर से कितना मतलब कोशिश रहते हैं वो एकदम हम कोशिश कर रहे हैं। सिक्किम बहुत ब्यूटीफुल है। जो इससे आगे हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आपको एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, वो पक्का सही में है। शायद ये इंडिया टुडे का सर्वे गलत नहीं हो सकता, इसीलिए अच्छी तरह से ये मुझे लगता है कि ये एकदम सिक्किम को ये अवार्ड मिलना एकदम डिज़र्विंग है, इसीलिए हमको मिला। फिर भी एक बार हम लोग को बहुत बहुत एकदम धन्यवाद देते हैं। और हमारा माननीय मंत्री जी जो अपना टाइम निकाल के ये अवार्ड फंक्शन में आए, इससे और जितना भी टूरिज़्म इंडस्ट्री में है ये बहुत उत्साह उमंग बढ़ेगा। शायद एक बहुत आप इन फ्यूचर ऑल्सो शायद वी लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। इसीलिए इसको और उत्साह बढ़ेगा और टूरिज़्म क्षेत्र में शायद वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 बनने का कोशिश में हम सब स्टेट लगे बोल के ये कोशिश और प्रार्थना के साथ हम ये अवार्ड रिसीव करते यहाँ से विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू। Thank you, Mr. Bhutia, for those encouraging words. We move on to the next awards. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Most Scenic Road,
destination is Munnar to Thekadi in Kerala. And to receive the award, we would like to request Ms. Sikha Surendran, Director Tourism Kerala, on the stage. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Culinary Destination is Bikaner in Rajasthan. And to receive the award, I would like to request Mr. Ravi Jain, Principal Secretary Tourism of Rajasthan, to receive the award. We have the Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Culinary Destination is Kolkata in West Bengal. And to receive the award, we have Ms. Ujjaini Datta, Resident Commissioner of West Bengal Government in Delhi, and Mr. Rajdeep Datta, Deputy Resident Commissioner of West Bengal Government in Delhi. Ladies and gentlemen, let's give them a loud round of applause. The survey winner for Tourism Awards under the category Best Festival Destination is Navratri, again in Gujarat. And I would like to request Mr. Kuldeep Singh Jhala, Joint Managing Director for Tourism in Gujarat, to again come back on the stage and receive the award. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Festival Destination is Bastar Dussehra in Jagdalpur in Chhattisgarh. And to receive the award, we have with us Ms. Shruti Singh, Resident Commissioner of Government of Chhattisgarh in Delhi. Congratulations, Ms. Singh. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Festival Destination is Shillong Cherry Blossom Festival in Meghalaya. And to receive the award, we have with us Ms. Muke Fuji D. Sangma, Tourist Officer, Tourist Information Center in New Delhi. Ladies and gentlemen, Himachal Pradesh won 2 awards. The Editor's Choice winner for Tourism Awards under the category Best Adventure Destination, which is Bir Biling in Himachal Pradesh. And they also won the survey winner for Tourism Awards under the category Best Mountain Destination, which went to Dharamshala. Unfortunately, Mr. Raghubir Singh Bali, MLA and Chairman Himachal Pradesh Tourism Development Corporation, could not be here. And with that, the India Today Tourism Awards comes to a close. Many congratulations to all the winners. Let's have a big round of applause for them. I would also requesting you to just stay back on a moment for a group photo, please. Yes. Yes. I would like to now invite all the winners to come back on the stage for a group photograph with their trophies, please.